السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم جو دعا گرامیٹکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 7۔ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، یہ ایک جملہ فعلیہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ربنا، رب بغیر تنوین بغیر الف لام تو یہ مضاف بن رہا ہے اور نام مضاف علیہ ہے۔ مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بنے گا کس کا؟ یا قائم مقام یہاں پر محذوف ہے، ہائڈ ہے، چھپا ہوا ہے، اور ادعو فعل کے یہ قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو فعل، انا فاعل اور ربنا مفعول کے ساتھ مل کر ایک جملہ فعلیہ بن گیا جو کہ ندا بنے گی، اے ہمارے رب۔ جواب النداء کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یہاں پر ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے، تو پہلے اس کو اینالائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے جملہ فعلیہ پر چلتے ہیں۔ واو سین عین حروف مادہ باب سین سے، اور فعل با فاعل ہے۔ وسعت آپ جب جانتے ہیں یہ مذکر کا صیغہ ہے، مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ آپ سمو لیجئے، آپ چھپا لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اس کا معنی لیا جاتا ہے، واو سین عین حروف مادہ باب سین سے۔ اور یہ جو فاعل میں نے آپ سے کہا کہ انتا، کیونکہ یہ تا لگا ہوا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انتا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہوگی۔ تو فائل جو ہے وہ ایٹ دی سیم ٹائم ممیز بنتی ہے، اور آگے تمیز ہمیں یہاں پر آئے گی، تو اس لیے ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ کلا جو ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف مضاف بنتا ہے ہمیشہ، مضاف کے بعد ایک مضاف علیہ ہوتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے، تو شیئن یہاں پر مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کلا شیئن مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بن گیا وسعت فعل کا، اور رحمتن، رحمتن منصوب اسم نظر آ رہا ہے تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرف عطف آ گیا، علمن جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، یعنی کہ ایک اسم دوسرے اسم پر عطف ہو گیا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ تمیز بن گیا جو فاعل انتا نکالی تھی اس کی، یعنی کہ اپنی رحمت اور علم، یعنی کہ جو فاعل ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی رحمت اور علم، ٹھیک ہے، علم۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یعنی کہ یہ جو رحمت و علمن ہے یہ تمیز بن رہا ہے، یہ ابہام دور کر رہا ہے فاعل سے، ٹھیک ہے۔ تو اے ہمارے رب، آپ اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو سموئے ہوئے ہیں، یا ڈھانپے ہوئے ہیں، یا چھپائے ہوئے ہیں، لائک گھیرے ہوئے ہیں، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سمجھ آئے۔ فا یہاں پر حرف عطف آ گیا، اغفر فعل آ گیا، فعل امر آ گیا، غین فا را حروف مادہ باب دعا سے ہے، اور یہ اغفر فعل امر ہے، اور جو ہے آپ بخش دیجئے، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں آپ بخش دیجئے۔ لام لام جارہ ہے، الذین اسم موصول ہے، اسم موصول کبھی بھی اکیلا کچھ نہیں بنتا، آگے صلۃ الموصول چاہیے ہوتا ہے، یہاں پر صلۃ الموصول ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آیا ہوا ہے۔ تابو، ٹھیک ہے، تاوا با حروف مادہ سے تابو، تو تا واو با حروف مادہ سے ہے، تابا یتوبو، اور پھر یہ تابو بنا ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ جنہوں نے توبہ کی۔ فعل و فاعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ فاعل ہو گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے، ہم فاعل ہو گئے، تو تابو فعل با فاعل یہ معطوف علیہ بن گیا، کیونکہ آگے ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ اتبعوا، تابع عین حروف مادہ باب افتعال سے ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو انتم فاعل، اور سبیلا کا، سبیلا جو ہے بغیر تنوین بغیر الف لام تو یہ مضاف بنا، اور کا ڈیزمی نظر آ رہی ہے تو یہ مضاف علیہ ہوا۔
मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन मंसूब नजर आ रही है तो ये मफूल बनेगा इत्तबाउ फेल का। इत्तबाउ फेल अंतुम फाइल और सबीला का मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो जाएगा ताबू वाले जुमला फेलिया के ऊपर। तो ताबू वाला जुमला फेलिया मातूफ अलई और आगे आने वाला ये जो जुमला फेलिया है ये मातूफ बन जाएगा। और यहाँ पर बात अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि वाओ अगेन हमें आतिफा नजर आ रहा है। की जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये मोटा काफ जो है ये फेले अमर है और इसका मतलब होता है बच्चा, आप बचा ले। ठीक है, फेले अम्र है, वाओ काफ या हरूफ मादा बाब दुआ से है और इसका ये फेले अमर बनेगा कई। ये सिर्फ एक मोटा काफ जो है ये एक पूरे का पूरा फेल है। देखें अरबी के वसत चेक करें कि एक हरफ में पूरा एक फेल छुपा हुआ है। तो क़ा जो है ये हरूफे फेले अम्र है और इसका मतलब होता है आप बचा लीजिए। हिम, किसको बचा लीजिए, हिम उन्हें, यानी कि जो जमीर जमा की इस्तेमाल हुई है ये मफूल बनेगी। फेल के साथ जब भी अटैच जमीर है वो मफूल बनेगी। अजाब अल जहीमी, अजाबा हमारे पास बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम तो ये मुदाफ बनेगा। अल जहीमी मजरूर नजर आ रहा है, मतलब ये मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन है। अजाब अल जहीमी मुरक्कबे इजाफी होकर मंसूब फॉर्म में नजर आ रही तो ये मफूल बनेगी किसकी, कई फेल की। कई फेल के दो मफूल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, हिम एक मफूल और अजाब अल जहीम दूसरा मफूल। और की फेल अंता फाइल अपने दोनों मफूलान के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तो यहाँ पर देखें कि ताबू वाला पहला जुमला और मातूफ अलई और उसके आगे फिर दो मातूफ आगे, इत्तबाउ वाला जुमला फेलिया और फिर वकीहिम वाला जुमला फेलिया। तो ये मातूफ अलई अपने दोनों मातूफान से मिलकर अल्लाह जीना इसमें मौसूल के लिए सिलातुल मौसूल बन गया। अल्लाह जीना इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर लामे जारा के लिए मजरूर होकर, ये जार मजरूर होकर ये मुतालिक के फेल इगफिर हो जाएंगे। इगफिर फेल अंता फाइल और अपने मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर अतफ हो जाएंगे वसियात जुमला फेलिया के ऊपर। तो वसियत जुमला फेलिया मातूफ अलई और इगफिर वाला जुमला यहाँ से जो शुरू हुआ और जहीम तक गया ये सारा जुड़ गया इस तरह से। तो ये सारा का सारा जो है वो मातूफ हो जाएगा वसियता फेल के लिए, यानी कि वसियता जुमला वसियता फेल वाले जुमला फेलिया के ऊपर। यहाँ पर हमें बेसिक वो कह लें कि दो जुमला आपको जुमला फेलिया नजर आए जो अतफ मातूफ हो गई वसियत से लेकर जहीमा तक, जहीमी तक। ठीक है, और ये फिर हमारे पास जवाब निदा आ गया। तो अब यहाँ पर देखें एक दो तीन चार और ये पांच जुमला फेलिया, पांच के बजाय बल्कि छह बनाए, ताबू वाला भी छह जुमला फेलिया मिलकर हमारे सामने एक दुआ मुकम्मल हुई है। और इस दुआ के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ए हमारे रब हर शय को समो लीजिए। अब ये जो हर का तर्जुमा किया है ना, तो ये अभी ग्रामर की रोज ही हमें पता चलता है कि कुल्ला के बाद अगर नकीरा इसम आ जाए तो उसका तर्जुमा, इस कुल का तर्जुमा हर से किया जाता है। कभी कभी कुल का तर्जुमा तमाम से भी किया जाता है। ठीक है, ये तर्जुमे डिफरेंस आता है। लेकिन ये ग्रामर की रूल से हमें ये पता चलता है, ये ग्रामर का रूल होता है कि कुल्ला के बाद जब भी नकीरा इसम आएगा तो वो फिर उसका तर्जुमा हर से किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द डिटेल में एडवांस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। हर शय को समो लीजिए, कहाँ समो लीजिए, अपनी रहमत और इल्म ने, तेरी रहमत और इल्म ने, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत और इल्म ने हर शय को ढांपा हुआ है, हर शय को घेरा हुआ है, हर शय को समोया हुआ है। ठीक, और फिर लिल्लजीना, सो तू उन लोगों को बख्श दे। ठीक है, किन लोगों को बख्श दे, अल्लजीना उन लोगों को, ताबू जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, तू इन्हें जहन्नुम के अजाब अजाब से बचा लीजिए। तो इस आयत के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देखते हैं। इस आयत का जो ऊपर वाला पोर्शन था, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें से दुआ वाला पोर्शन लिया है, तो अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला की हर वक्त हम तो सना बयान कर रहे होते हैं, वो बंदों के लिए ये दुआ मांगते हैं, वो बंदों के लिए ये दुआ मांगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते जो है वो दुआ मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं, ए हमारे रब, हर तेरी रहमत और इल्म ने हर शय को घेरा हुआ है, तो आप बख्श दीजिए उन लोगों को
जो तौबा करते हैं और जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, और तू इन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। इसमें मलाइका मुकर्रबीन के एक खास ग्रोह का तस्करा और वो जो कुछ करते हैं इसकी वजाहत है। ये ग्रोह है इन फरिश्तों का जो अर्श को उठाने वाले हैं, और वो जो अर्श के इर्द गिर्द है, इनका एक काम ये है कि अल्लाह की तस्बीह तमहीद करते हैं, यानी नकाइस से इसकी तंजिया, कमालात और खूबियों का, इसके असबात और इसके सामने अजर तजलील यानी ईमान का इजहार करते हैं। दूसरा काम उनका ये है कि ये अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझें कि जो अर्श उठाए हुए फरिश्ते हैं, एक काम उनका अल्लाह सुब्हाना तआला की हम्दो सना बयान करना है, और दूसरा काम उनका ये है कि वो अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते चार हैं, मगर क़यामत वाले दिन इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और ये इब्ने कसीर से हमें ये जो है वो वजाहत हमें नजर आती है। तो अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा है, उसको कितने फरिश्तों ने उठाया हुआ है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं। तो आप ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि अहले ईमान के लिए वो फरिश्ते दुआ कर रहे हैं जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है। यानी कि अल्लाह की हम्दो सना के अलावा वो जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अहले ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करें जिनके लिए वो अर्श उठाए हुए फरिश्ते दुआ मांगते हैं। हम कैसे शामिल हो सकते हैं उन लोगों में? हम इस तरह से शामिल हो सकते हैं कि अब यहाँ पर देखें कि उन लोगों के लिए बख्शिश तलब कर रहे हैं जिन्होंने तौबा की। तो हमें सबसे पहले अपने लिए तौबा इस्तगफार को जरूरी कर लेना है, अगर हमें उन लोगों में शामिल होना है जिन पर जो अर्श उठाए हुए फरिश्ते हैं वो उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें तौबा करनी है। तो यहाँ पर ये एक पहली खसूसियत क्या आ गई कि वो लोग तौबा करते हैं और तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं। और जी, तो अर्श उठाए हुए जो फरिश्ते हैं वो किन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं? वो उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं बख्शिश की जो तौबा करते हैं। तो हमें भी तौबा करने वाला बनना है, हमें भी अल्लाह ताला से इस्तगफार करने वाला बनना है इंशाल्लाह। और जो अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते की पैरवी करते हैं उनके लिए बख्शिश मांगते हैं। और दुआ वो क्या मांग रहे हैं कि ए अल्लाह आप इन्हें जहन्नुम से बचा दें। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे जो जिनके लिए फरिश्ते बख्शिश मांग रहे हैं। कैसे शामिल होंगे इन लोगों में? ऐसे शामिल होंगे कि अगर हम भी तौबा का रास्ता इख्तियार कर लें, हम भी अल्लाह सुब्हाना तआला के रास्ते की पैरवी इख्तियार कर लें, तो इंशाल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जिनके लिए फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, जिनके लिए फरिश्ते ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह इन्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।